Good morning, students. Today we are going to start with voice. Voice is one of the most important topic for English grammar that we have to undertake for any competitive exam. In voice, what is voice first of all? Voice is something that tells you about your verb, that whether this verb, we all know what is verb. Verb is an action word, right? It tells us what a subject or an object is performing or is doing. So voice is directly or indirectly coming onto the verb. So my topic, as I hope you have gotten, is active and passive voice. So in voices, there are two terms that we have to understand very vividly. The first is active voice and the second one is passive voice. When I say active, it means, for example, I started with verb, right? When I say active voice states that my subject is of utmost importance, that my verb is more dependently giving me or giving the utmost importance to the subject. And when I come to passive voice, this verb is now giving importance to my object, right? In active and passive voice, the most important thing is a verb. For example, a sentence is made up of this structure, right? This is the basic structure that we use to form a sentence. It needs a subject, it needs a verb, it needs an object. When what I am trying to tell you in these both the voices is, when my verb is giving utmost importance to my subject, then it's active voice. When this verb is giving importance to the object, it's passive voice. I hope this is clear. So the question comes, how to convert from active to passive or vice versa, from passive to active. This is something very easy that we have to understand. I'm just going to give you 3 basic rules for the conversion. Okay? 3 rules for conversion from active to passive, and you just have to, आपको उसे उल्टा करना है from passive to active. So when I'm saying a conversion, I said a sentence is made up of this. You have to keep this structure in your head very clear. My first rule states, जब हम active से passive में जाएंगे, the subject will go to the place of an object. और जब subject मेरे object की space लेगा, वहाँ पे add होगा by. Clear? अब subject ने object की place ले ली, तो subject की place empty है, तो my object will come on subject. So my object will come on the place of subject. ये मेरा first rule है. Clear? The second rule states, मेरा verb एक एक्टिव पैसिव के बेसिक क्वेश्चंस, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, एरर स्पॉटिंग में भी ये यूज होता है, कन्वर्जन में यूज होता है, फिलअप्स में यूज होता है, सब में यूज होता है. इसको चेंज करने के लिए आपको ये स्टेप्स वहाँ रफ में करने नहीं होंगे, वहाँ पे आप इसे ऑटोमेटिकली कर लेंगे. इस जस्ट आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो अपने वर्ब पे देना है. डायरेक्टली आपका वर्ब आपको बताएगा कि ये कौन सा टेंस है और उसका टेंस आपके माइंड में उसे कन्वर्ट करेगा. वो हम यहाँ से इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको ये बेसिक्स क्लियर हो. ये वर्ब, अब वर्ब के हमारे कई ज़्यादा फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, द ING वन, फिफ्थ फॉर्म जिसमें हम S और ES ऐड करते हैं. तो आपका वर्ब ये जिस भी फॉर्म में होगा वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा. दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द
वर्ब. सो वर्ब जिस भी फॉर्म में आए उसे हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना है. क्लियर? ये है हमारा सेकेंड रूल. इसके बाद थर्ड एंड द लास्ट रूल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा. टेंस चेंज नहीं होगा. बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जैसे नरेशन में हम सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं, उसका फॉर्म चेंज करते हैं. ये नरेशन की बेसिक चीज़ें हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पे आने में हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में लेके जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में लेके जाते हैं, या सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं, और इंटरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इम्पेरेटिव हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं. बट हियर हम ना उसका फॉर्म चेंज करते हैं, सेंटेंस का फॉर्म भी वही रहेगा और सेंटेंस का टेंस भी वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी. तो टेंस का हमें नो चेंज करना है. इट विल नॉट चेंज. आई होप दीज 3 रूल्स आर क्लियर. सो टू एक्सप्लेन दिस मोर फर्दर, जैसे मैंने आपको बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ये अप्लाई होगा. सबसे पहला टाइप ऑफ सेंटेंस आता है असर्टिव, जिसे हम काफी नामों से एफर्मेटिव, डेक्लेरेटिव, पॉजिटिव, काफी नामों से जानते हैं. सो आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द नेम्स so that you don't get confused. Okay, तो इन सब sentences में हम मेरा जो structure होगा वो यही होगा, right? Simple. For example, birds build nest. अब अगर मुझे इस सेंटेंस को, ये मेरा एक्टिव वॉइस है और इसे मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो मुझे अपने माइंड में ये 3 रूल को दिमाग में रखना है. ये मेरी बेसिक चीज़ है. अब सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें अपने माइंड में क्लियर रखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट, राइट? सो मेरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर है. अब मुझे ये 3 रूल फॉलो करने हैं. एज आई सेड कि ऑब्जेक्ट विल कम ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल गो ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. सो मेरा नेस्ट आ गया, सब्जेक्ट बन गया, और बाय बर्ड्स आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, राइट? प्लेस चेंज हो गई. वर्ब मेरा थर्ड फॉर्म में जाएगा, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, राइट? तो मेरा V3 आ गया. अब यहां पे मुझे अपने वर्ब का फॉर्म चेक करना था कि कौन से फॉर्म में है. ये मेरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, कौन से फॉर्म में है, राइट? सो यहाँ पे वर्ब मेरा फर्स्ट फॉर्म में है, तो मेरे फर्स्ट फॉर्म में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? मेरे फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, एम या आर, राइट? अब इन 3 में से मुझे एक चूज करना है. सो यहाँ पे आएगा इज. क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर. यहाँ पे हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, उसका बेसिक रूल. और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिक रूल कहता है कि अ सब्जेक्ट शुड अग्री विद इट्स वर्ब. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा. तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा. सो नेस्ट इज बिल्ट बाय बर्ड्स. दिस इज माय असर्टिव सेंटेंस, राइट? मेरा टेंस यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट था, मेरा टेंस यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है, राइट? आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल. He taught us English. So when I say he taught us English, he is my subject, taught is my verb,
us is my direct object and English is my इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स में आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, और वो दोनों फॉर्म्स गलत नहीं होंगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं दोनों से कन्वर्ट कर देती हूँ। अगर अस मेरा अब यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो वी, अब टॉट, टीच, टॉट, टॉट, राइट। सो माई वर्ब इज इन विच फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब मेरा सेकेंड फॉर्म में है। ओके, सो यहां पे टॉट का टॉट रहेगा, इंग्लिश मेरा आ गया बाय हिम। अब यहाँ वी है और वर्ब मेरा सेकेंड फॉर्म में है, तो मेरे हेल्पिंग वर्ब होंगे वॉज या वर, राइट। अब मेरा वी इज माई सब्जेक्ट। अब वी मेरा प्लूरल है, राइट। तो वी मेरा प्लूरल है तो मेरा हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो वर्ब मेरा क्या आएगा? वर। वी वर टॉट इंग्लिश बाय हिम। ये मेरा पहला टाइप ऑफ कन्वर्शन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट मैं ऊपर कर रही हूं, नेक्स्ट व्हेन आई सेड, अभी हमने अस, मेरे पहले ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाया था, अब मैं इंग्लिश को अपना सब्जेक्ट बनाऊंगी। तो मेरा इंग्लिश इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। बाय हिम टू अस, राइट। अब यहाँ पे फिर अगेन वॉज और वर, क्यों? क्योंकि मेरा वर्ब सेकेंड फॉर्म में था, तो इंग्लिश वॉज, क्योंकि इंग्लिश इज सिंगुलर, राइट। अच्छा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई एम गिविंग यू द हेल्पिंग वर्ब्स जो आपको ध्यान में रखने हैं फॉर द कन्वर्जन्स। अगर आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, तो वहां पे आप इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। वर्ब जब आपका सेकेंड फॉर्म में होगा तो वहां पे आप वॉज और वर्ब लेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा तो आप हैज, हैव और हैड। देखिए, ये चीज ऑलरेडी आपका वर्ब अपने साथ लिया हुआ होगा, तभी आपको आप V2 और V3 में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो जब आपके इस वर्ब के पास ऑलरेडी हैज, हैव और हैड है तो वहां पे आप बीन को ऐड करेंगे, राइट। जब वर्ब आपका फोर्थ फॉर्म में आएगा, फोर्थ फॉर्म इज वर्ब ing फॉर्म। जब आपका वर्ब फोर्थ फॉर्म में है, दैट इज ing फॉर्म, क्योंकि आपको इसे कन्वर्ट करना है और V3 में लाना है, तो यहाँ पे आप बीइंग लगाएंगे, BEING, बीइंग लगाएंगे, राइट, और वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। इसके बाद आते हैं आपकी मोडाल्स लाइक विल, कैन, मे एंड सो ऑन, और यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब बी लगाएंगे। ओके ओके, आई एम गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स। अभी हमने V1 कर लिया, V2 कर लिया, V3 कर लेते हैं। मैं आपको एक कंटिन्यूस टेंस का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। फॉर एग्जाम्पल, दे आर ईटिंग ऑरेंजेस, राइट। So they are eating oranges. So just by your this
helping verb, you get to know that this is present continuous. Apart from that, nothing will tell you which tense is this. So the main focus is on our verb or an helping verb, जो हमारे थर्ड रूल को सेटिस्फाई करवाएगा कि टेंस में तब्दीली नहीं करनी है. So मेरा they is subject, oranges is object, eating is verb. So as I said, verb की फोर्थ फॉर्म में being लगेगा, तो हमें इसका ध्यान रखना है. Oranges मेरा बन गया सब्जेक्ट. अब यहाँ वी मतलब टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, ठीक है. तो उसमें अभी मैंने आपको बोला कि फर्स्ट फॉर्म में इज, एम या आर लगेंगे, तो मेरे पास यहाँ दे था इसलिए आर लगा है. अभी मैं तीनों लिख देती हूँ, फिर आप डिसाइड करिएगा कि क्या करना है. ऑरेंजेस में इज, एम, आर मेरे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे आर मेरा एक हेल्पिंग वर्ब है. सो ऑरेंजेस हेल्पिंग वर्ब, बीइंग. अब ईट का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन. ईटन बाय देम, राइट. दे विल चेंज, प्रोनाउंस विल चेंज, कन्वर्ट होंगे बाय देम. अब देखिए मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, ठीक है. जब भी नाउन में एस जुड़ता है वो प्लूरल होता है. सो ऑरेंज इज अ नाउन, addition with an s, it's plural. So मेरा helping verb will also come as a plural. So oranges are being eaten by them. Clear? So this is present continuous. Okay, now come on this V3 form. Okay. They had won the game. When I say they had won the game, okay, so here they is subject, won is V3, game is my object. See, as I told you, I was explaining you here कि sentence जब भी V3 में होगा वो अपने साथ has, have या had लेकर आएगा. सो यहाँ पे वॉन ने हैड ले रखा है, विन, वॉन, वॉन यही होता है. सो यहाँ पे हैड ऑलरेडी है, सो हमें हैड को चेंज नहीं करना. पास्ट परफेक्ट मेरा सेंटेंस है और ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा. सो द गेम हैड, हेल्पिंग वर्ब है मेरा, यहाँ पे मुझे ऐड करना था बीन, वॉन बाय देम. So I hope this is clear with all the forms, right? Now the next topic, that after the type of sentence, assertive type of sentence, I'm going to start with interrogatives. Okay, it's very simple. Second type is interrogatives. Interrogatives, you know, the question sentences, जिसमें हम सवाल पूछते हैं. So interrogatives or questions, you are clear that it's of two types, yes or no answer type and WH family. So when I say first type is yes or no, अब देखिए ध्यान में रखना है हमें ये कि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इंटेरोगेटिव एक सवाल में ही तब्दील होगा, ठीक है. उसे हमें नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर में नहीं लेकर आना है. एसर्टिव में ही रहते हैं, इंटेरोगेटिव में ही रहते हैं. तो उसके अंदर पहला है येस और नो. येस और नो वो सवाल होते हैं जो हम पूछते हैं, उसका एब्रप्ट आंसर या तो हाँ होता है या ना. फॉर एग्जाम्पल, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, तो या तो आप हाँ बोलेंगे या आप ना बोलेंगे कि नहीं समझ आ रहा है या हाँ समझ आ रहा है, ठीक है. तो ये होते हैं आपके येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन. तो इसका अब हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम रिटन, हैज शी completed the work. Okay,
सो यहाँ मेरा हैज़ शी कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। या तो आप मुझे बोलेंगे हाँ कर लिया उसने कंप्लीट, या बोलेंगे नहीं नहीं किया कंप्लीट। तो मेरा यहाँ हैज़ इज एन हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे एज अ इंटेरोगेटिव यूज हो रहा है, एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। अब इसको आप छोड़ दो अभी, ठीक है। इस जो हमें ये चेंज करना है इसे हम हटा देंगे। अब यहाँ ये शी कंप्लीटेड द वर्क, आई होप अगर मैं यहाँ से हैज़ हटा दूँ तो ये एक असर्टिव सेंटेंस में आ गया, राइट। सो अब देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, शी, वर्ब क्या है ये, द वर्क इज माई ऑब्जेक्ट, क्लियर। हैज़ को भूल जाइए। तो यहाँ पे वापस से वही रूल फॉलो करने जो 3 रूल्स हमने फॉलो करे थे। सो द वर्क, क्योंकि यहाँ हैज़ है तो यहाँ बीन ऐड होगा क्योंकि वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ बीन आएगा। तो द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर, ठीक है। अब हैज़ है तो हैज़ के साथ दो चीजें हैं, या तो हैज़ ही रहेगा या हैव रहेगा, राइट। अब हैव तब आएगा जब मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, बट यहाँ वर्क इज अगेन सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे हैज़ विल रिमेन। सो हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर। सो दिस इज अ कन्वर्जन फॉर येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप आता है WH फैमिली। WH फैमिली क्वेश्चंस, WH फैमिली क्वेश्चंस होते हैं जो सवाल आपके व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom इससे स्टार्ट होते हैं। तो इसमें भी हम, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रखना है, तो व्हाट विल रिमेन व्हाट, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। बस हमें अपना जो कन्वर्जन है वो यहां करना है। सो मेरा आर इज एन हेल्पिंग वर्ब, यू इज माई सब्जेक्ट, डूइंग इज वर्ब और हियर इज माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरा वर्ब का टेंस बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्लियर। सो यहाँ पे इज, एम या आर, बीइंग क्योंकि वर्ब मेरा फोर्थ फॉर्म में है, डन बाय यू हियर। सो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू हियर, सो इज विल कम हियर। So I hope this is clear to you with the assertive and the interrogative conversion of active to passive voice. We'll continue with this topic again in the next video. By then, do read. If you are having any queries, comment and I will go through on that and will definitely come back to you. So thank you.